Welcome everyone to a new video. So in this video we are going to look at the organic chemistry part from TIFR 2019 and we are going to look at the solution to various problems that are based on organic chemistry. So let's start the video. So the first problem that we are going to talk about, we can see what we are given is a substrate and they say that it was heated at 210 degrees for 8 hours, and what the options that are given to us, it seems like that this is based on Diels-Alder reaction, and we can clearly see that there is an elimination of sulfur dioxide reaction. So we can clearly understand and imagine the driving force for this particular reaction when you heat is the elimination of SO2, and this particular reaction is undergoing stereoselectively giving one of the compounds. So the important thing to know is what would be the desired product, especially what would be the stereochemistry at this center. So we can see in all the four examples, the stereochemistry of these hydrogens, they are the one that vary. So let us just jump into the problem. So if we look at the substrate, what we have is the first substrate is this one, okay? And when you heat, as I said, is the driving force is the elimination of SO2. So this is how, so this particular bond moves here. So the aromatic pi electrons, they also move to give you this particular diene, okay? And on the terminal side, what we have is an dienophile, right? This is what you have here. So what I have, just for the sake of convenience, what I have done is basically I have numbered them. I have numbered them 1, 2, 3, 4, 5, 6. So we know that there is a formation of 6-membered ring here as a result of the Diels-Alder reaction. उसी के साथ I have also numbered these bonds 1, 2, 3, 4, 5, 6. So there is a formation of 2 6-membered ring as a result of this stereoselective Diels-Alder reaction. Okay, let us just heat them. This is subjected to heating. We can clearly see it leads to the formation of these two rings. Now the question, ये हम कैसे decide करेंगे that the stereochemical arrangement was this one, that is option number C was the correct answer. How do we know that? ठीक है, इसके बारे में मैंने बताया कि आप क्लियरली एक सिंपल अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं. हम एक चीज़ देख सकते हैं कि हमारा जहाँ पर जो डाइनोफाइल है, दिस पर्टिकुलर डाइनोफाइल, दिस पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप, दिस इज कमिंग आउट ऑफ द प्लेन. अगर हमारा ये डाइनोफाइल इज कमिंग आउट ऑफ द प्लेन है और हम क्लियरली देख सकते हैं कि हमारा ये वाला जो डाइइन है, ये पूरा का पूरा डाइइन है, this is attached to this alkyl chain and this is going behind the plane. तो इसका मतलब हमें इससे साफ पता चल जाता है कि this particular dienophile is on top and this particular diene, this is at the bottom. So it means the addition of this particular diene onto this dienophile is happening from the टॉप फेस. अगर ये एडिशन टॉप फेस से हो रहा है तो व्हाट डज दैट मीन? इट मीन्स द हाइड्रोजन दैट इज अटैच्ड ऑन दिस पर्टिकुलर डाइन is going to be on the top. जबकि इस डाइनोफाइल का ये जो हाइड्रोजन है, जो नंबर कार्बन नंबर 1 से अटैच है, दिस इज गोइंग टू गो एट द बॉटम. ठीक है, और अगर ये केस है, सो दिस इज द स्टीरियोकेमिस्ट्री दैट वी आर गोइंग टू गेट. आई होप ये बहुत लॉजिकली था क्वेश्चन. इस तरह से आप इसको प्रोसीड करके यू कुड हैव अराइव्ड एट द राइट आंसर. ओके, सो लेट अस लुक एट अनदर प्रॉब्लम. So in this particular problem, what we are given is this particular compound number 1, and what they have said is basically compound 1 when they added into an anti-cavity fluoride toothpaste. Okay, so what they saw was the toothpaste, it turns blue. So they are asking what sort of a conversion that is happening from compound 1 to any of these compounds. एक चीज़ मैं आपको पहले एक चीज़ समझा देता हूँ या बता देता हूँ कि बिना किसी दूसरे ऑप्शंस को देखे ऑप्शन 1 लुक्स लाइक दी राइट ऑप्शन. उसका रीज़न बताता हूँ आपको क्या है. बिकॉज this we can clearly see there's an extended conjugation and this is sort of an ionic species that exists. and usually क्या होता है कि जब भी आप कलर का चेंजेस देखते हैं किसी भी कंपाउंड के अंदर, and it is mostly due to the presence of these ionic compounds or these carbanions or these carbocationic chemistry के अंदर सर्टन आपको कलर्स मिल जाते हैं. ठीक है, अब हम देखने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से ये पूरा का पूरा ट्रांजिशन फ्रॉम कंपाउंड 1 टू ऑप्शन 1 कैसे होता है. लेट अस जस्ट लुक इनटू इट. सो व्हाट हैपन्स, हमको पता है कि आपने एंटी फ्लोराइड टूथपेस्ट, इन्होंने एक बार जो फ्लोराइड दे दिया ना, दैट इन्फॉर्मेशन इज गुड इनफ. हमको पता है कि जो ये पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप जो अटैच है, दिस इज नथिंग बट अ प्रोटेक्टिंग ग्रुप फॉर
अल्कोहल्स हो गया आपका, ठीक है, या फिनॉल्स हो गया, दिस इज कॉल्ड TBDPS विच इज टर्शियरी ब्यूटिल डाइफिनाइल सीलेन। और हमको पता है कि ऑल द सीलेन प्रोटेक्टिंग ग्रुप्स दे कैन बी इजीली क्लीव्ड यूजिंग एनी फ्लोराइड, लाइक टेट्राब्यूटिल अमोनियम फ्लोराइड आप ले लीजिए, आप हाइड्रोजन फ्लोराइड पिरिडीन ले लीजिए। क्योंकि उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये होता है कि जो सिलिकॉन और फ्लोरीन बॉन्ड होता है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड एंड दैट इज व्हाट ड्राइव्स दिस टी प्रोटेक्शन, ठीक है। तो पहले स्टेप में आपका क्या, फ्लोराइड ने इस पे अटैक किया, व्हाट यू फॉर्म इज देन फिनॉक्साइड एनायन। और यहाँ पर अब आपका क्या होता है, एक तरह का कैस्केड टाइप ऑफ डी प्रोटेक्शन होता है। आपका फिनॉक्साइड आयन यहाँ आया, ये आपके पाई इलेक्ट्रॉन्स मूव हुए एंड यहाँ से आपका क्या हुआ कि एलिमिनेशन ऑफ CO2 है। सो व्हाट यू आर एजेक्टिंग इज दिस टू पर्टिकुलर स्पीशीज, आप ये दोनों इजेक्ट कर रहे हैं। आप इस पूरे प्रोसेस में CO2 भी इजेक्ट कर रहे हैं जो प्रोसेस को फॉरवर्ड डायरेक्शन में ड्राइव करता है। और जैसे ही आपका N नेगेटिव बना, वहां से आपका नाइट्रोजन अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे दिए। सो व्हाट यू एंड अप गेटिंग इज द फॉर्मेशन ऑफ दिस इंटरमीडिएट विच इज ब्लूइश इन नेचर, ठीक है। सो इट इज दिस फ्लोराइड का अटैक यहाँ पर क्या करता है, इस पूरे के पूरे कैस्केड और डी प्रोटेक्शन को ट्रिगर करता है, ठीक है। सो दैट इज वाई ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। अब अगला हम प्रॉब्लम देख लेते हैं। बेसिकली अगला प्रॉब्लम हमारा क्या है कि व्हाट वी हैव इज अ कीटोन हैविंग अ कायरल सेंटर एट द अल्फा पोजीशन which is the phenyl group, and what we have is an allyl bromide. So what we are generating here is an organozinc compound, and that organozinc is getting added onto the carbonyl. हमारा एक सिंपल यही हो रहा है, ठीक है। हम ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी को तो क्लियरली वी कैन आउट एंड आउट रिजेक्ट दीज ऑप्शन। उसका रीज़न क्या है कि फिनाइल ग्रुप का यहाँ पर दिखाया गया स्टीरियोकेमिस्ट्री हैज बीन इन्वर्टेड। तो इन दिस पर्टिकुलर अटैक I don't think there is any change that is going to take place at the alpha position. It is out and out सिंपल एडिशन ऑफ ऑर्गेनोजिंक फ्रॉम बिहाइंड द प्लेन। देखिए आपका ये ऑर्गेनोजिंक स्पीशीज बना, हमारा क्या है कि दिस फिनाइल ग्रुप विच इज अ बल्की ग्रुप, दिस इज कमिंग टुवर्ड्स अस, ये हमारी तरफ आ रहा है। तो हम क्लियरली समझ सकते हैं कि ये ऑर्गेनोजिंक, हम यहाँ पर इन दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम आई एम नॉट गोइंग इनटू एनी स्टीरियोकेमिस्ट्री मॉडल, आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक यू गाइज अंडरस्टैंड थ्रू अ वेरी सिंपल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लॉजिक से, ठीक है। फिनाइल ग्रुप सिंस दिस इज कमिंग आउट ऑफ द प्लेन, इट्स अ बल्की ग्रुप, सो दिस ऑर्गेनोजिंक इट वुड रादर प्रेफर टू अटैक दिस कार्बोनिल फ्रॉम बिहाइंड द प्लेन। और जब ये बिहाइंड द प्लेन आपका अटैक करेगा तो हाइड्रोक्सी जो नया जनरेट होगा दिस विल कम टुवर्ड्स अस। सो द ऑप्शन 1 इज गोइंग टू बी द करेक्ट ऑप्शन इन दिस पर्टिकुलर केस, okay. So the next question that was asked to us was, they said that okay, what we have is identify a compound whose molecular ion peaks appears with equal intensity. हमको बोला है कि आयनिक कंपाउंड है जिसका 122 और 124 पे निकलता है, ठीक है। हम क्लियरली इस चीज़ से दो पीक से हम समझ सकते हैं कंपाउंड के अंदर ब्रोमो है, ठीक है। और ऑप्शन के अंदर भी हमें क्या है, 1 ब्रोमोप्रोपेन 2 ब्रोमोप्रोपेन भी दिया हुआ और कोई ऑप्शन भी नहीं है, सो दिस इज राइट। दूसरा बोला है कि उसका जो लार्जेस्ट फ्रेगमेंटेशन होता है दैट गिव्स अ पीक एट 443 which is a base peak. हमको पता है कि base peak is the peak which has the maximum intensity. So इसका मतलब वो काफ़ी stable होगा। Let us look at किस तरह का rearrangement हो रहा होगा या किस तरह का हमारा cation फॉर्म हो रहा होगा जिसकी वजह से base peak हो रही होगी। Let us see. हम पहले 1 ब्रोमोप्रोपेन देख लेते हैं जिसका 122 124 है, ब्रोमाइड रेडिकल निकल गया। सो व्हाट वी आर जनरेटिंग इज अ प्राइमरी कार्बोकैटायन, यहाँ पे मैं 1 ब्रोमोप्रोपेन की बात कर रहा हूँ। And what happens, this 1,2 hydride shift takes place to give you this secondary carbocation. It is this secondary carbocation which has a mass 43, and it is, since it is the most stable, it gives a base peak at 43. 2 ब्रोमोप्रोपेन में तो सिंपल डीफ्रेगमेंटेशन, जब आपका फ्रेगमेंटेशन यहाँ हो रहा है, इट इज गिविंग यू दिस सेकेंडरी कार्बोकैटायन जिसकी बेस पीक आपकी क्या है 43 पे है। सो आपका करेक्ट ऑप्शन था बोथ ए एंड बी, दोनों के दोनों आपको ये वाला बेस पीक देंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन के अंदर पूछा गया कि इन दी ब्रॉड बैंड डिकपल्ड C13 NMR द नंबर ऑफ NMR सिग्नल, मतलब ए के हमारे C13 में कितने सिग्नल आएंगे, बी के कितने सिग्नल आएंगे, ठीक है। अगर हम देखें ए कंपाउंड को हम देखें तो व्हाट वी हैव इज अ प्लेन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। अगर हम यहाँ से प्लेन पास करें और यहाँ से प्लेन पास करें तो इसके अंदर हमारे क्या है कि 2 प्लेन प्रेजेंट है मॉलिक्यूल के अंदर, ठीक है। अगर इसके अंदर 2 प्लेन प्रेजेंट हैं तो इसका मतलब जो नंबर ऑफ कार्बन होंगे वो काफ़ी कम होंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारा कार्बन नंबर 1 और ये वाला कार्बन, दिस इज बोथ ऑफ देम आर गोइंग टू गिव दी सेम सिग्नल। कार्बन नंबर 2 जो है हमारा वो हो गया, और ये वाला कार्बन नंबर 2, ये वाला भी कार्बन नंबर 2 है, ये वाला भी कार्बन नंबर 2 है, ठीक है।
सेम है क्योंकि दो प्लेन इससे पास हो रहे हैं, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ कार्बन हम क्लियरली इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5। सो दीज आर द टोटल 5 सिग्नल्स, ये वाले कार्बन है जो हमको C13 से NMR के अंदर 5 सिग्नल दिखेंगे। अगर हम कंपाउंड नंबर बी की बात करते हैं, कंपाउंड नंबर बी के अंदर क्या है कि देयर इज वन प्लेन प्रेजेंट जो कि केवल यहां पर है, ठीक है। और अगर हमारा ये वाला प्रेजेंट प्लेन प्रेजेंट है, डिवाइड दिस मॉलिक्यूल इनटू 2 हाफ्स, जबकि इस पूरे के पूरे मॉलिक्यूल में ऑप्शन नंबर 1 के केस में ये मॉलिक्यूल को क्या कर रहा है, 1/4 में डिवाइड कर रहा है। तो अगर इसको 1/2 में इस केस में ऑप्शन नंबर बी में डिवाइड कर रहा है, सो नंबर ऑफ कार्बन दैट वी आर गोइंग टू ऑब्जर्व वी कैन काउंट एज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सो टोटल के टोटल हमें जो C13 में सिग्नल मिलेंगे इसके 10 सिग्नल मिलेंगे क्योंकि आपका ये वाला इसके अंदर प्लेन प्रेजेंट है, ठीक है। दैट इज हाउ यू वुड हैव अप्रोच दिस प्रॉब्लम। अब जो हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारा दिया गया था, व्हाट वी आर गिवन इज दिस पर्टिकुलर कंपाउंड, और ये क्लियरली लॉच रिडक्शन के ऊपर बेस्ड है वाला प्रॉब्लम। सो दे हैव गिवन अस ए कीटोन, एन एल्डिहाइड एंड एन एस्टरिक। एक चीज तो वो क्लियरली अंडरस्टैंड दैट सोडियम बोरोहाइड्रेट दे डू नॉट रिड्यूस एस्टर, एस्टर को रिड्यूस नहीं करता है वो। तो ऑप्शन नंबर सी को तो हम क्लियरली आउट एंड आउट रिजेक्ट कर सकते हैं। और ऑप्शन नंबर डी में क्या लिखा है, ऑल ऑफ दीज, ठीक है, ये लिखा है ऑल ऑफ दीज। तो हम ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी को रिजेक्ट कर सकते हैं क्योंकि ऑब्वियसली सी तो इसके अंदर हो ही नहीं सकता। लेट अस लुक एट ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन नंबर बी विच इज गोइंग टू बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। We know in the case of loss reduction what happens is basically since we are using either ethanol and methanol as a solvent, तो what happens is this ketone it is getting coordinated with the cesium, ठीक है। cesium से कोऑर्डिनेट होता है जिसकी वजह से इस कार्बोनिल की हमारी क्या होती है, इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी इंक्रीज हो जाती है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या है जानने वाली, जो हमारा एल्डिहाइडिक होता है इन द प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल और मेथनॉल एज अ सॉल्वेंट व्हाट इट फॉर्म्स इथॉक्सी एसिटल, हमारा डेरिवेटिव इसका बन जाता है। और अगर हमारा इसका इथॉक्सी एसिटल डेरिवेटिव बन गया है, सो इट मींस द रिडक्शन कैन नॉट टेक्स प्लेस एट दैट पर्टिकुलर पोजीशन, ठीक है। केवल और केवल हमारा इस कार्बोनिल का ही रिडक्शन हो सकता है। तो उसके बाद जब आपका सोडियम बोरोहाइड्रेट इस कार्बोनिल पे ऐड होता है, सो व्हाट डू वी एंड अप गेटिंग इज द रिडक्शन ऑफ ओनली कार्बोनिल। So using Lorsch reduction we can selectively reduce ketone in presence of aldehydes, ठीक है। क्योंकि यहां पर देखिए पहले स्टेप में भी क्या है, क्योंकि एल्डिहाइड्स का जो एसिटल है इट फॉर्म्स मच ईजियर एज कंपेयर टू कीटोन्स। इसीलिए वेन एवर यू आर यूजिंग एथेनॉल और मेथनॉल एज अ सॉल्वेंट, द एल्डिहाइडिक अंडर दीज कंडीशन फॉर्म दीज इथॉक्सी और मिथॉक्सी एसिटल, जबकि हमारा कीटोनिक अवेलेबल रहता है, इट कोऑर्डिनेट्स विद द सीजियम, इट इंक्रीजेस द इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ कार्बोनिल कार्बन, सोडियम बोरोहाइड्रेट इसको रिड्यूस करता है। सो द प्रोडक्ट दैट यू एंड अप गेटिंग इज द 1। सो ऑप्शन 1 हियर वाज द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है वो हमारा क्लियरली बेस्ड है एक तरह का इलेक्ट्रोसाइक्लाइजेशन के ऊपर। अगर हम नॉर्मल लॉजिक भी लगाएं, दिस इज नथिंग बट दिस इज बेस्ड ऑन 6pi इलेक्ट्रोसाइक्लाइजेशन है हमारा। तो क्लियरली ये हमको पता है बेस और एसिड के प्रेजेंस में तो ये ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता है। सो ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी को वी कैन आउट एंड आउटराइट रिजेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। देख लेते हैं आइदर दिस इज हैपनिंग इन प्रेजेंस ऑफ लाइट और हीट, लेट अस सी। तो यहाँ पर हमेशा मैं नंबर कर देता हूँ जिसकी वजह से ताकि आपको समझने में आसानी हो कौन सा बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। सो लेट अस नंबर देम एज 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सो देयर आर टोटल इट्स अ 9 मेंबर्ड रिंग, ठीक है। सो व्हाट इज बेसिकली हैपनिंग इज 6pi इलेक्ट्रोसाइक्लाइजेशन, मतलब इसमें 6pi इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हैं। कौन कौन से, ये वाला और ये वाले। सो दीज आर द 6pi इलेक्ट्रॉन्स दैट आर इन्वॉल्व। अब हमारा यहाँ पर क्या हो रहा है, कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 6 के बीच में बॉन्ड फॉर्म हो रहा है सिग्मा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्लियरली देख सकते हैं 1 और 6 के बीच में सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हुआ, यहाँ से ये बॉन्ड मूव हुआ, सो 2 और 3 के बीच में आया, ठीक है। ये वाला हमारा यहाँ से शिफ्ट हुआ, 4 और 5 के बीच में आया। अब इंपॉर्टेंट बात जो चीज़ ध्यान रखने वाली है वो क्या है कि इन द प्रोडक्ट दे हैव क्लियरली शोन द स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ बोथ द हाइड्रोजन्स। सो बोथ द हाइड्रोजन्स आर सिस टू ईच अदर, ठीक है, दोनों के दोनों पीछे जा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, हमको पता है कि जब हम हीट करते हैं, जब अंदर द हीटिंग कंडीशन, ठीक है, 6pi इलेक्ट्रॉन्स के हमारे इस तरह से हम उसके वो लोब्स को पहचान सकते हैं, ठीक है। इसके क्लियरली हम लोब्स को देख सकते हैं। दिस इज द हाईएस्ट होमो हम इसका कंसिडर करते हैं हीट कंडीशन में, आपको पता है। तो इन दोनों के बीच में ओवरलैप कब होगा, जबकि हमारा डिसरोटेशन होगा, ठीक है। जब इन दोनों का डिसरोटेशन होगा तो दोनों के दोनों हाइड्रोजन हमारे क्या होंगे, सिस आ जाएंगे। तो इसी से हमें क्लियरली पता चलता है क्योंकि यहाँ पे के दोनों हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन
कार्बन 6 पे और कार्बन 1 पे जब दोनों के दोनों बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं तो दोनों के दोनों क्योंकि सिस आ रहे हैं तो इसका मतलब हमारा दिस इज हैपनिंग इन प्रेजेंस ऑफ हीट। तो ऑप्शन सी यहाँ पर हमें पता चल जाता है इज द राइट ऑप्शन। बट लेट अस सी व्हाट हैपेंस इन प्रेजेंस ऑफ द लाइट। इन केस ऑफ द लाइट हमको पता है कि क्योंकि हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में से एक इलेक्ट्रॉन हमारा क्या होता है एक्साइट होके पहुंच जाता है लूमो में। सो देन आवर लूमो बिकम्स द न्यू होमो। ठीक है, लूमो हमारा होमो हो जाता है इन प्रेजेंस ऑफ द लाइट एंड इन दैट केस दिस इज हाउ दीज लोब्स कैन बी रिप्रेजेंट। अब इन दोनों के ओवरलैप के लिए दे हैव टू बी अंडरगो कॉन रोटेशन और कॉन रोटेशन के अंदर हमारे दोनों के दोनों ग्रुप क्या हो जाते हैं ट्रांस हो जाते हैं। ठीक है, तो बट लेकिन यहाँ पर हमारा क्योंकि ये ट्रांस नहीं है सो द लाइट कैन नॉट बी द right option. So the correct option was in presence of heat this 6pi electrocyclization takes place where both the hydrogen end up being the cis to each other. उसके बाद ये वाला जो क्वेश्चन था दिस वाज अ बिट ट्रिकी क्वेश्चन। आई थिंक आई वुड नॉट बी सरप्राइज अगर काफ़ी स्टूडेंट इसको गलत करके आते। उसका रीज़न समझ लेते हैं। सो व्हाट वी हैव इज दिस पर्टिकुलर पेप्टाइड, उसको हमको बोला गया कि दे हैव ट्रीटेड विद द एक्सेस 10% फॉर्मल्डिहाइड इन मेथनॉल। ठीक है, फॉर्मल्डिहाइड से अगर हम बात कर रहे हैं, ठीक है, मॉलिक्यूल के अंदर हम देख लेते हैं व्हाट वी हैव इज दिस फ्री एमीन और ये वाले हमारे क्या हैं कि बाकी इंटरनल एमाइड्स हैं। हमको पता है कि फॉर्मल्डिहाइड की प्रेजेंस के अंदर जो प्राइमरी एमीन्स होते हैं जैसे कि हम नीचे देख लेते हैं व्हाट दे एंड अप फॉर्मिंग इज दीज शिफ्ट बेसेस, इसको मैनेज रिएक्शन भी कहते हैं। ठीक है, सो दिस इज द शिफ्ट बेस दैट यू फॉर्म। सो जिन ऑप्शन के अंदर हमारा ये वाला पर्टिकुलर एमीन हमारा क्या प्राइमरी है और ये वाला एमीन हमारा क्या प्राइमरी है, इसका मतलब ये एमीन और ये एमीन पक्का शिफ्ट बेस बनाएंगे। हम ऑप्शन 1 के अंदर क्या है कि ये वाला एमीन नहीं बना रहा है तो हम इसको क्लियरली रिजेक्ट कर सकते हैं। ऑप्शन बी के अंदर ये वाला नहीं बना रहा है तो हम इसको भी रिजेक्ट कर सकते हैं। ऑप्शन सी के अंदर वी कैन क्लियरली सी वी हैव एन फॉर्मेशन ऑफ शिफ्ट बेस हेयर एंड वी हैव अ फॉर्मेशन ऑफ शिफ्ट बेस हेयर, सो ऑप्शन सी कैन बी कंसिडर्ड। लेकिन ऑप्शन डी के अंदर हमारा क्या हो रहा है कि ये वाला हमारा शिफ्ट बेस फॉर्म हो रहा है, लेकिन जैसे ही हमारा ये शिफ्ट बेस फॉर्म होता है और हमको पता है शिफ्ट बेस आप प्रीटी रिएक्टिव, काफ़ी रिएक्टिव होते हैं और हमें पता है फिनॉल की जो 2 पोजीशन होती है इट इज़ वेरी रिएक्टिव इन नेचर। ठीक है, फिनॉल अंडरगोज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वेरी फास्ट। सो फिनॉल का क्या होता है ऑर्थो पोजीशन इट अटैक्स दिस पर्टिकुलर शिफ्ट बेस टू गिव यू द फॉर्मेशन ऑफ option number C. I know this was quite a tricky question, but this is how you would have approached this particular problem. जो सेकंड आपका ये वाला क्वेश्चन था दिस वाज एंटायरली मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन। इसके लिए आपको जानना चाहिए था, आपको पता होना चाहिए था कि वेरियस एमिनो एसिड्स के अंदर कौन से फंक्शनल ग्रुप अटैच होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमसे पूछा गया विच इज़ नॉट हाइड्रोफोबिक। ठीक है, हाइड्रोफोबिक मतलब कौन सा वाला इनमें से नहीं है। ठीक है, हमारा को पता है कि हमारा वेलिन, ल्यूसीन एंड आइसोल्यूसीन के अंदर ये वाली जो हमारी साइड चेन है दीज आर एक्चुअली हाइड्रोफोबिक इन नेचर। ठीक है, मतलब हाइड्रोफोबिक का मतलब क्या है कि हाइड्रो का फोबिया, ठीक है, मतलब वाटर का फोबिया, जिसको पानी से डर लगता है। ऑब्वियसली ये वाले जो हमारे फंक्शनल ग्रुप है दीज आर प्रिटी नॉन पोलर ग्रुप जो हमारे अटैच है, तो इन तीनों को क्या है कि वाटर का हमारा फोबिया है। ठीक है, अगर हम आर्जिनिन की बात करते हैं व्हाट दिस आर्जिनिन हैज इज दिस पर्टिकुलर ग्वानिडीन ग्रुप अटैच, और हमको पता है कि क्योंकि ग्वानिडीन ग्रुप अटैच है एंड दीज आर प्रोटोनेटेड स्पीशीज सो दे कैन इजीली फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद द वाटर। सो इट इज दिस आर्जिनिन व्हिच डजंट हैव द फोबिया from water, so this is not hydrophobic, so the correct option was option number D. हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन था दैट वाज एंटायरली बेस्ड ऑन दी स्टीरियोकेमिस्ट्री असाइनमेंट। आर और एस स्टीरियोकेमिस्ट्री असाइनमेंट करना था। काफ़ी लंबा सवाल पूछा गया था कि क्योंकि इट कुड हैव कंफ्यूज्ड यू, बट इट वाज अ स्ट्रेट फॉरवर्ड असाइनमेंट ऑफ आर एंड एस। और इसके अंदर हम क्लियरली देख सकते हैं दिस इज हाउ यू वुड असाइन। सो फॉर दिस पर्टिकुलर कार्बन वी नो हाइड्रोजन इज, यहाँ पे हाइड्रोजन शो नहीं किया है, सो वी कैन क्लियरली नो इट इज गोइंग बिहाइंड द प्लेन, सो दैट इज अ प्रायोरिटी नंबर 4। और इस कार्बन के साथ जो पहला कार्बन अटैच है दैट इज अ डबल बॉन्ड, और यहाँ पर इस कार्बन के साथ क्या है 2 हाइड्रोजन और एक ये कार्बन, इस वाले कार्बन के साथ क्या है 2 हाइड्रोजन और ये कार्बन। सो दिस वुड गेट प्रायोरिटी 1 2 3 गोइंग क्लॉकवाइज आर, और इस केस के अंदर क्या है प्रायोरिटी दिस हैज 1 दिस हैज 2 दिस हैज 3 एंटी क्लॉकवाइज एस। और 3 के अंदर क्या है कि अब कार्बन रिड्यूस कर दिया,
तो हमारा जो ये हाइड्रोजन है, दिस हैज़ अ प्रायोरिटी 4, दिस हैज़ 1, और क्योंकि इस कार्बन के साथ क्या है कि ये वाला हमारा ओलिफिन अटैच है, सो दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज गोइंग क्लॉकवाइज, सिंस द हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप इज कमिंग आउट ऑफ द प्लेन, सो द कॉन्फिगरेशन इज गोइंग टू रिवर्स, सो दिस इज गोइंग टू बिकम S and this is R. So straightforward question था. Option number C was the correct answer in this case. So I made a video on बेसिकली चैनल का इंट्रोडक्शन, उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया था, एंड दिस प्रॉब्लम वाज स्ट्रेट फॉरवर्ड. अभी यहाँ पर ऊपर इन्फॉर्मेशन के अंदर, डिस्क्रिप्शन के अंदर भी उस पर्टिकुलर वीडियो का आपको लिंक मिल जाएगा. यू कैन वॉच दैट एंटायर वीडियो. काफ़ी एग्जांपल्स वहाँ पे मैंने लिए हुए हैं और विच आर बेस्ड ऑन चैनल का इंट्रोडक्शन. सो दिस प्रॉब्लम वाज स्ट्रेट फॉरवर्ड. जो मैंने एग्जाम्पल अपने वीडियो में डिस्कस किया वहाँ से लिया हुआ है. सो यूजिंग अंडर दीज कंडीशन लिथियम एंड एल्यूमिनियम हाइड्राइड सोडियम मिथॉक्साइड, व्हाट डू यू एंड अप गेटिंग इज द फॉर्मेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर आयोडोनेटेड compound. ठीक है. So what it goes through is basically this particular intermediate which attacks this particular electrophile. अगर यहाँ पर आप इस electrophile से अटैक करेंगे so आपको ये वाला iodinated compound मिल जाएगा, which was nothing but option number A. So जो next problem था, this was quite an interesting problem. उसका मैं एक reason बताता हूँ क्यों है. Because the one thing that surprised me was these NMR values. So what they're talking about ppm scale. Normally ppm scale के अंदर you do not see any aliphatic compounds having this higher, these higher values. So what I presume in my mind, either they should have mentioned, there was a typo and they should have mentioned this as a tau scale. But from my understanding, what I clearly feel that a student has to subtract these numbers by 10 to get the exact ppm values. But anyway, let's proceed with the problem. But I had a bit of confusion regarding this. So हमको क्या बताया गया? सबसे पहले तो हमें एलिमेंटल एनालिसिस दिया हुआ है. हमको कार्बन और हाइड्रोजन के बारे में बताया गया कितना है. अगर कार्बन और हाइड्रोजन दिया गया, both these numbers they do not add up to 100. ठीक है. तो इसका मतलब क्या है? What is remaining is oxygen. Using elemental analysis you cannot determine the number of oxygen. कितना हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का परसेंटेज आप नहीं पता लगा सकते. ठीक है. आप नाइट्रोजन का पता लगा सकते हैं. आप दूसरा आपका हो गया, अगर आपका क्लोराइड प्रेजेंट है, ब्रोमाइड प्रेजेंट, आप वो पता लगा सकते हैं. ऑक्सीजन आप पता नहीं लगा सकते. तो उसको करने के लिए आपको इन दोनों को ऐड करके 100 से सब्सट्रैक्ट करना होगा, तो आपको पता चल जाएगा. उसके बाद सिंपलेस्ट वाज द डिटरमाइन द मोल्स ऑफ कार्बन. क्लास 11th के अंदर हमने सारा किया गया है. 6 को कार्बन के हमारा जो मोलर मास से डिवाइड किया. सो व्हाट डू वी एंड अप गेटिंग इज दीज नंबर. इस नंबर को सबसे जो लोएस्ट हमारा होता है उससे हम डिवाइड करते हैं. व्हाट डू एंड अप गेटिंग इज दिस नंबर ऑफ एक तरह का इंपीरिकल फार्मूला हमको मिल जाता है. सो हेयर इन दिस केस इट बिकम C4H8O. ठीक है. IR हमको क्लियरली बताता है, हमको बाकी इन दो वैल्यूज़ को नहीं देखना, हमको केवल एक वैल्यू देख लेते हैं हम, 1715. ठीक है. तो इसका मतलब क्या है कि हमारा कीटोन प्रेजेंट है. दैट कैन ऑल्सो बी एन एल्डिहाइडिक कीटोन. हमारा बाकी जो दो ऑप्शन नंबर सी में हमारा, क्योंकि ब्यूटेनल्डिहाइड बोला है, तो ये भी हो सकता है, ये हो सकता है, लेकिन ब्यूटेनॉल तो 100% नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे हमें एटलीस्ट 3500 या 3300 के पास भी एक कोई ना कोई हमारा ब्रॉड पीक कुछ ना कुछ तो आना चाहिए था कॉरस्पॉन्ड टू OH. सो ऑप्शन बी कैन नॉट बी द राइट ऑप्शन. नाउ लेट अस लुक एट द NMR वैल्यूज. अगर हम देखें NMR वैल्यू में, बट वी हैव इज अ क्वाड्रेट, सिंगलेट एंड ट्रिपलेट. इट इज ओनली इन द केस ऑफ ऑप्शन 1 विच इज ethyl कीटोन वेयर सच such splitting pattern can be observed. जबकि ऑप्शन बी के अंदर आपका क्या है, ब्यूटेनॉल के अंदर, what you will observe for this methyl you will observe triplet. ये वाले CH2 के लिए आपको पेंटेट, इस हाइड्रोजन के लिए सेक्सटेट, और ये वाले मिथाइल के लिए डबलेट. और इसका भी आपको शायद एक ब्रॉड सिंगलेट आपको मिल जाता, या थोड़ा सा ब्रॉड सिंगलेट जो कि डबलेट जैसा लग रहा है, वो आपको शायद दिख जाता. एंड फॉर ऑप्शन नंबर सी, बट यू वुड हैव ऑब्जर्व्ड अ सिंगलेट फॉर दिस हाइड्रोजन, अ ट्रिपलेट फॉर दिस कार्बन, this CH2, and for the methyl you would have observed a triplet, and this CH2 you would have observed a sextet. So from these information, option 1 seems like the right compound. But again, having said that, the only confusing part was this ppm scale. So जिसकी वजह से मुझे लगता है कि you might have been very very enticed to टिक दिस ऑप्शन नंबर डी, विच इज़ नन ऑफ दैम. क्योंकि आपको यही लगेगा इसे देख के कि इसके अंदर ये पर्टिकुलर हमारा कोई ना कोई एरोमेटिक कंपाउंड होगा. ठीक है. जिसकी वजह से आप इसका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकालने की कोशिश करेंगे. इसका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट हमारा कितना आएगा, 1 आएगा. और उससे भी हमें समझ आता है कि 1
अगर किसी भी कंपाउंड का डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 1 है तो यू कैन नॉट हैव दिस हायर वैल्यूज, ठीक है, नहीं हो सकता। और आपका 8.93 देख के आपको लगेगा ट्रिपलेट 3 हाइड्रोजन, क्या ये एल्डिहाइड हो सकता है? वो भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। सो व्हाट द ओनली वे यू हैड वाज टू सब्सट्रैक्ट दिस बाय 10 टू गेट द एग्जैक्ट वैल्यूज, ठीक है। So this was about the TIFR exam 2019 and this was about the problems that were based on organic chemistry. अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, share it with your friends, subscribe to the channel and let me know if you have any confusion. Thanks a lot for watching the video. Have a very good day. Bye.